morning dear students, welcome to the next lecture of the Laplace transform. ओके और आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे. व्हाट इज स्टेटमेंट? सो इफ Laplace of f of t is equal to f of s, then show that Laplace of integral 0 to t f of u du, and that is equal to f of s upon s. Let me tell you something, that to prove this property we have two methods. Okay, one is the change of order of integration method and one is the direct method. Okay, but I'll go with the second method because that is very easy and convenient for the students to understand and to solve in the examination. Okay, so let us see its proof. So solution, we first of all denote it by phi of t. Let phi of t is equal to integral 0 to t f of u du. Of course ये फंक्शन ऑफ t हो जाएगा. क्यों फंक्शन ऑफ t होगा? क्योंकि अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हो और लिमिट पुट करते हो तो ऑफ कोर्स ये आपको t के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए इसको डिनोट किया है मैंने फाई ऑफ t से. ठीक है. सो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? फाई डैश ऑफ t दैट इज इक्वल टू, नो डाउट जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव कैंसिल कर देगा, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? सिंपली यस, इट बिकम्स एफ ऑफ टी. मैंने आपको पहले बताया कि इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ टी. तो जैसे फंक्शन ऑफ टी बनेगा, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी द फंक्शन ऑफ टी. ओके, चलो यहाँ पे लैप्लास अप्लाई कर देते हैं. ऑन टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड, so what does it become? It becomes Laplace of phi dash of t, that is equal to Laplace of f of t. Correct? And it is nothing but equal to f of s. Yes, we know Laplace of f of t is equal to f of s. Okay, now phi dash of t, this is a derivative of phi with respect to t. Correct? And differential property हमने इसके पहले पढ़ा है. What is the differential property? Laplace transform of f dash of t, that is equal to s f of s minus f of 0. Correct? Laplace transform of f dash of t is equal to s f of s minus f of 0. सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सिर्फ f dash के जगह पे क्या है? phi है. तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे? This implies s phi of s minus phi of 0. ठीक है. उसके बाद दैट इज इक्वल टू, दिस इज f of s. बट नाउ दिस phi of 0 विल बी इक्वल्स टू 0. व्हाई? नाउ यू कैन सी हियर phi of t इज इक्वल टू क्या है? इंटीग्रल 0 टू t f of u du है. अगर आप t इज इक्वल टू 0 पुट करते हो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करते हो, तो व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स इंटीग्रल 0 टू 0 f of u du. एंड यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों अगर सेम है, क्या बोला मैंने? अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों अगर सेम है, तो ये जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है. तो दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल्स टू 0. मतलब फाई ऑफ 0 क्या बन गया? 0. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट एम्प्लाइज एस फाई ऑफ s माइनस 0, दैट इज इक्वल टू f of s. सो फाइनली व्हाट यू गेट हियर इज s phi of s is equal to f of s upon s. ठीक है, सॉरी, phi of s is equal to f of s upon s. But phi of s is nothing but what? Phi of s क्या होता है? हमको पता है. f of s क्या है? f of s is nothing but Laplace of f of t. बरोबर है. तो phi of s क्या होगा? That is nothing but Laplace of phi of t. तो यहाँ पे हमको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे? यस, चलो, दिस Laplace of phi of t, and this is equal to f of s upon s. But phi of t is equal to what? Phi of t is nothing but integral 0 to t. चलो लिख देते हैं, Laplace of integral 0 to t f of u du, and this is equal to
f of s upon s. This is a very simple proof of this Laplace transform of integral property. Okay, so now we will take some problems based on this so that your ideas will be cleared. Okay. So okay, you can see here I have written two problems based on the integral property of Laplace transform. यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट प्रॉपर्टी मेंशन की हुई है. अब you can see here Laplace of integral 0 to t f of u du that is equal to f of s upon s. Okay, तो पहले का सॉल्यूशन देखते हैं. Yes, if you compare both of these, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि Laplace of integral 0 to t f of u, यहाँ पे f of u के जगह पे sin u है du. इसका मतलब क्या है कि let f of u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin u हो जाएगा. अगर आप u को t से रिप्लेस कर देते हो, u को t से रिप्लेस कर देते हो तो क्या मिलेगा, yes f of t दैट इज इक्वल टू sin t. करेक्ट. अगर आप इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हो तो क्या मिलेगा, yes Laplace of f of t दैट इज इक्वल टू Laplace of sin of t. अब आपको ये तो पता है कि Laplace of f of t हम हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, f of s से डिनोट करते हैं. और sin t का लैपलास तो हमको पता है क्या है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है. मतलब हमने अभी f of s की वैल्यू फाइंड आउट करके रख दी है. कुछ नहीं करेंगे, वी हैव दिस रिजल्ट. वी हैव Laplace of integral 0 to t, yes here it is f of u du that is equal to f of s upon s. whatever the value we have obtained हम सब उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे. so that implies Laplace of integral 0 to t f of u की वैल्यू यहाँ से मिल रही है sin of u du and this is equal to f of s हमने यहाँ पे obtain किया हुआ है, यहाँ से उठाएंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे इसको डिवीजन में कौन है, s है, तो मैंने ये s यहाँ पे लिख दिया है. So this is a very simple solution of the Laplace transform of integral 0 to t sin u du. Now you will take the second problem. ठीक है. Okay, now we will take the solution of a second problem. So what it is, Laplace of integral 0 to t twice of 1 minus cos of u upon u du. Okay, so first of all what we do, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है Laplace of integral 0 to t f of u du that is equal to f of s by s. इसका मतलब मुझे यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर लिया तो यहाँ पे ये जो टर्म है वो हमारी f of u है. तो क्या लिखेंगे, so let f of u is equal to twice of 1 minus cos of u upon u. फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे u को रिप्लेस करते हैं t से, तो क्या मिलेगा, this implies f of t that is equal to twice of 1 minus cos of t upon t. फिर क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, f of s चाहिए, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका लैपलास लेना पड़ेगा. चलो लेते हैं Laplace of f of t that is equal to Laplace of twice of 1 minus cos of t upon t. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, इस 2 को पहले बाहर निकाल लेते हैं लैपलास के, क्योंकि 2 इज अ कांस्टेंट टर्म. तो अभी लैपलास में क्या रहेगा, 1 माइनस cos t अपॉन t. अब यहाँ पे लैपलास लेना है इस टर्म का और यहाँ पे डिवीजन में मुझे t दिख रहा है, इसका मतलब है कि डिवीजन बाय t वाली प्रॉपर्टी हमको अप्लाई करना पड़ेगा. क्या है डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी, Laplace of f1 of t upon t that is equal to integral s to infinity, yes Laplace of f1 of t into ds. ऐसा ही है, हमने यहाँ पे f of s लिखा था, f of s is nothing but Laplace of this f1 of t, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो f1 of t, यहाँ पे f1 of t के जगह पे क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ t, क्योंकि ये t तो डिवीजन में है, तो f1 of t की जगह पे क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस ऑफ t. तो यहाँ पे ये अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, दैट इज इक्वल टू टॉइस ऑफ इंटीग्रल s टू इंफिनिटी, यस Laplace ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ t इंटू ds.
करेक्ट। और बाद में हमको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 2 इज आउटसाइड, इंटीग्रल s टू इंफिनिटी लैप्लस ऑफ 1 हमको सबको पता है, लैप्लस ऑफ 1 इज 1/s माइनस, यहाँ पे इसका लैप्लस निकालना पड़ेगा, किसका, कॉस्टी का, तो क्या होगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस। ठीक है, चलो यस, लैप्लस ऑफ दिस f of t, this is nothing but equal to twice of yes integral s to infinity, then here it is देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे I'm just writing 1/s माइनस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लिख रहा हूँ। मतलब इन जनरल मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, और ये जो 2 हमने लिखा है इस 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों किया मैं अभी आपको बता देता हूँ। इंटू डी एस, हमको पता है कि हमको अगर इंटीग्रेशन लेना है, ओके, हमको अगर इंटीग्रेशन लेना है तो ये 1/s का इंटीग्रेशन तो हमको पता है क्योंकि वो log ऑफ s हो जाता है, ठीक है, माइनस, लेकिन इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं था, किसका, ये वाले टर्म का। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, इसको इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या चाहिए था, हमको यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों, इससे करने के बाद जब हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर मिल जाएगा। सो अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते तो क्या मिलेगा, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव मिलेगा 2s, मतलब आप लोगों को ये वाला रिजल्ट पता है, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx दैट इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस c, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यू कैन सी हियर दिस न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे log ऑफ यस f ऑफ x, मतलब ये आता है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, और ये 1/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया है, और ये s टू इन्फिनिटी लिख दिया है। इसके पहले भी हमने ऐसा एक प्रॉब्लम देखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, log ऑफ s माइनस 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, तो मैंने 1/2 को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यस log ऑफ एस स्क्वायर, ये कैसे हुआ, ये 2 यहाँ पे चले जाएगा, हमको पता है कि a log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ b टू द पावर a होता है, ये हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लॉगरिथम के लॉज में, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, ये तो ऑलरेडी कॉमन निकल गया है, यहाँ पे बचेगा log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 एंड लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते तो क्या मिलता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा log ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, यस log ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अपर लिमिट अप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, ठीक है। उसके पहले काम करते, इसको थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, एस स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर से एस स्क्वायर कॉमन निकालो तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एंड द लिमिट इज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नाउ इफ यू पुट हियर द इन्फिनिटी, अगर आप यहाँ पे s के जगह पे इन्फिनिटी रखते हो तो आपको 1 अपॉन इन्फिनिटी मिलेगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, log ऑफ यस दिस इज नथिंग बट इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस, फिर s के जगह पे ऐसे ही रखना है, तो क्या मिलेगा, log ऑफ यस इट इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। आगे मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू, बट log ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 माइनस, और यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करते हो तो आपको फिर से हमारी ओरिजिनल टर्म मिल जाएगी, कौन सी, दिस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, लेकिन पता है यहाँ पे माइनस ऑफ log क्या होगा, ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देगा, तो व्हाट डज दिस बिकम, this becomes equals to log of s square plus 1 upon s square,
सो व्हाट इज दिस लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज नथिंग बट एफ ऑफ एस, हमको पता है। तो ये हमको क्या मिला यहाँ पे, एफ ऑफ एस मिल गया। अब हम क्या करेंगे, आगे हमारे पास क्या रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट है। अब डायरेक्ट पुट करेंगे, अब हम डायरेक्ट पुट करेंगे दैट वी हैव यस लैपलेस ऑफ क्या है, इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू that is equal to f of s upon s. So this implies, so Laplace of integral 0 to t, what is the value of f of u? F of u is nothing but 2 into 1 minus cos of u upon u du, and this is equal to f of s upon s. तो f of s is already available to us, और वहाँ पे क्या है 1/s है, तो 1/s इंटू लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड लैपलेस ऑफ दिस इंटीग्रल 0 टू t 2 into 1 minus cos u upon u du. So dear students, in today's video we have taken the Laplace transform of integral property. Not only that, we have taken 2 problems based on that property. I hope you might have enjoyed. Okay, so that's all for today. Thank you very much.